ہمارے لیے آج کا کلام لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23 باب 43 آیت۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سن دینا ہم سب کی ربائی سے برکت ہو۔ ہمارے لیے آج خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا کلمہ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں یہ دوسرا کلمہ ہے جو نجات کا کلمہ کہلاتا ہے، ڈاکو کی درخواست کا جواب ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا کوئی اتفاقاً امر نہ تھا، بلکہ یہ خداوند کے مقرر انتظام کے مطابق تھا، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہرایا گیا تھا وہی عمل میں لائیں۔ پس حاکم وقت کا یہ فرمان کہ مسیح خداوند کو دو ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا جائے، بائبل مقدس کے مطابق ہے، خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کیوں اپنے اکلوتے بیٹے کو خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا؟ اس کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں اور خطاؤں کے عوض مصلوب ہوا تھا۔ اگرچہ اس کی اپنی ذات اقدس گناہ سے مبرہ اور منزہ تھی، تاہم وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے دائیں اور بائیں دونوں طرف دو ڈاکوؤں کی صلیبیں تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک ڈاکو مسیح پر ایمان لا کر نظر ڈالتا ہے، اس کے ذہن کی تاریکی اس آفتاب صداقت کی کرنوں سے دور ہوتی ہے اور وہ اس کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے، لیکن دوسرا ڈاکو اس کا انکار کرتا ہے اور ہجوم کے ساتھ مل کر اس پر لعن طعن کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دونوں ڈاکو مسیح کے قریب تھے۔ صلیب پر 6 گھنٹے کے دورانیہ میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات سے دونوں آگاہ تھے۔ دونوں ہی انتہائی اذیت کا شکار تھے۔ دونوں قریباً مرنے کے قریب تھے۔ دونوں کو گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت تھی، لیکن ایک ڈاکو اپنے گناہ ہی میں مر گیا اور دوسرے نے مسیح کو قبول کیا، اس کی معافی بخش قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے اسے رحم کی التجا کی اور فردوس میں پہنچ گیا۔ ایک ہی قسم کے حالات میں ایک مسیح کو قبول کرتا ہے اور دوسرا اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج کلیسیا کی بھی یہی حالت ہے۔ ایک ہی گرجے میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، ایک ہی پیغام کو سنتے ہیں، کچھ کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن دوسرا دنیا کی فکروں میں الجھ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا کا کلام بے فائدہ رہتا ہے، وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بے فائدہ نہیں لوٹتا۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ صلیب پر ڈاکو کا نجات حاصل کرنا مسیح کے بے بیان فضل کا آئینہ دار ہے۔ ہمارا خدا فضل کا خدا ہے اور نجات صرف اس کے بے انتہا فضل سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال سے ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخششیں ہیں۔ تائب دل ڈاکو کا ایمان ایک زندہ اور
कीमती ईमान है। उसने इसी वक्त से मसीह से दरख्वास्त की और उसने अपनी माफ़ी के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के करीब होकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। और उसने दरख्वास्त की कि जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। तो खुदावंद यीशु मसीह का ये अल्फाज हैं कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम भी अपनी गलतियों खताओं की माफ़ी मांग कर खुदा के सामने झुक जाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं कि खुदावन हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, अपनी गलती खताओं की माफ़ी मांगते हैं, तो बेशक वो खुदा हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। जिस तरह आज खुदावन के कलाम में हम देखते हैं कि उस डाकू को खुदावन ने नजात दी और कहा कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस तरह हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी गलतियों खताओं की माफ़ी मांगें, क्योंकि इंसान होते बेशुमार हम गलती गुनाह करते रहते हैं। इसके लिए हमें हर रोज़ हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए और वो खुदावंद हमें माफ़ करने की और हमें निजात देने की कुदरत रखता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम आज खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ आसिफ खान साहब ने कलाम मुकद्दस में से आज दूसरा कलमा जड़ा है वो बोलिया है। सानू जरूरत है कि असी जे तां दोवें वो एक गल कर लेंदे भी असी खुदावंदा तू सानू भी बचा। उन्हें तो आख्या भी तू आप भी पाई ते सानू बचा। ते दूसरे ने आख्या कि ऐ नदान असीं तो अपने गुनाहां दे विच फड़े आ। उन्हें तो कोई गलती खुदा नहीं की जिहदे विच वो भी साडे नाल टंगिया खड़ा। ते फिर उस वक्त ही वो आंदा है कि ऐ खुदावन ऐ उस्ताद ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही कोई देर नहीं, क्योंकि कल या परसों या मैं जाके तेरे लिए भी जगह बनावांगा, ये नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਕਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਖਣ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ, ਇਕੱਠੀ ਬਾਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ
खुदा दे बंदे कलामे मुकद्दस नूं बयान करते हैं जिस तरह के कलाम दे विच आंदा है कि दो जणियां चक्की पींदियां होंदियां, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। ये अज इहो ही कलमा जिहड़ा है उन्हें आख्या वो तो रह गया ना उत्ते, पर वो उहदे नाल फरदोस चला गया। सानू जरूरत इस चीज़ नूं कि नहीं कि उन्हें आख्या, पर वो आंदा कि समझो समझो भी असीं की करने पे आ। असीं सीधे जाना तो फिर अज ही उहदे नाल फरदोस दे विच होवांगे। जे असीं विंगे जाना है, एक दूजे नाल अदावतां, एक दूजे नाल तफरके, एक नाल जुदाइयां, तो फिर वो उत्थे ही जाएगा जिते दूसरा डाकू भी आया। एक तो चला गया, वो तो उहदे नाल समान ते चला गया, जन्नत फरदोस चला गया। सानू भी जरूरत है कि असी खुदा दे काम दे विच, खुदा दीयां गल्लां दे विच हर वक्त, क्योंकि वो आंदा है कि ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से न हटे, हर वक्त तू इहदा विरद करदा रहे। सानू जरूरत है कि जिस तरह उस डाकू ने आख्या कि ऐ नदान, असीं तां अपने गुनाहां दे विच, असीं तां अपनी गलतियां दे विच फड़ीजे आ, पर उन्हें तो कोई गुनाह नहीं किया। वो अपने नाल टंगिया खड़ा। ते फिर आंदा है कि ऐ उस्ताद, ऐ खुदावन, जदों तू अपने पाछे जाएगा तो सानू भी याद करेगा। सानू जरूरत है कि असीं खुदा तो पुछिए, खुदावन दा सानू भी नाल रख, साडियां गलतियां खतावां नूं माफ कर। खरे उहदे नालों उन्हां ज़्यादा गुनाह कीते होण, उन्हां ज़्यादा चोरियां कीतियां होण, उन्हां ज़्यादा डाके मारे होण, पर उस वक्त वो सारे उहदे माफ वेखना। असीं इस चीज़ नूं है कि असीं उहदा डर ते खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नबू हुए कि हमारा हादी और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किस के चीज़ के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लतन शौकत मेहरबानी है खुदावंद, जिस तूने हमें आज ये कलाम अता किया कि हम भी तेरे साथ जन्नत और फरदोस में जा सके और तेरा डर और खौफ रखते हुए दूसरे से कहें कि ऐ नादान, तू नहीं जानता कि हम तो गुनाहगार हैं, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया। हम यही एक दूसरे से कहें कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। खुदामा तू हमें मुआफ़ कर दे, हमारी गलतियाँ और खताओं को मुआफ़ कर दे, एक एक को बड़ी बरकत दे। खुदावन आज अपने मुकद्दस अजीम दिन में इस घर में चलता फिरता नजर आ, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा जैसे कि मक्खन कानूनी की मिसाल है, ऐसे बहुत ज़्यादा मसाले हों, जैसे कि खुदावन ये इस्लामाबाद में वो जो हुआ, ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें तो हम औखे से औखा काम भी कर सकते हैं। खुदावन एक एक को बड़ी बरकत दे, और जबकि खुदावन इस्लामाबाद की उस कानूनियों को खुदावन बरकत दे, उन लोगों को बरकत दे, और खुदावन सारी शैतान की ताकत को जला कर रख कर दे, एक एक को बड़ी बरकत दे। खुदावन हुकूमत को अकल और दनाई दे, खुदावन सारी शैतान की ताकत को जला कर रख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। जैसे कि कामरान पर ये सब कुछ छोड़ दिया है, हाँ खुदावन उसको अकल और दनाई दे, और खुदावन उसको बरकत में बरकत दे खुदावन, और उसके दिल दिमाग ज़हन को ताज़ा कर, नया दिल नया दिमाग नई रूह अता कर खुदावन, उसको अपने खुल्लुदा हाथों में ले ले खुदावन, तेरा डर और खौफ रखता हुआ जिंदगी बसर करे और इन काबों को कर सके। खुदावन सारी शैतान की ताकत को जला कर रख कर दे। जैसे कि खुदावन तूने गीत गाने में खुदावन रहनुमाई की, ऐसे ही खुदावन तू खादम अपने खादम को
खुदा ने हिम्मत और ताकत दी और उसके होठों का जुम्मा लिया, तेरे कलाम मुक़द्दस को बयान किया और इस कलाम को खुदावन एक एक दिल में रह जाए। जैसे कि तू कहता है कि मैं हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, तुम मेरा मस्कन हो, तुम अपने दिल को साफ करो, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाज़ा, वो है आना चाहता। हाँ खुदावन तू खटखटाता है। हाँ खुदावन जैसे तो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, हम भी खुदावन तुझे कहें हाँ खुदावन तू हमारे दिल में आ। जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक को बरकतों से मालो माल कर खुदावन, एक एक की बहुत ज़्यादा एक की रहनुमाई कर खुदाम। बीमारियां, कमज़ोरियां, परेशानियां तेरे नाम से जाती रहे खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। जैसे कि खुदावन बच्चों ने खुदा फादर जी के खाने का, बाबू खादमों के खाने का इंतज़ाम किया है। हाँ खुदावन तू एक एक को उनको इसके एवज उनको हज़ार गुना देना है खुदावन, एक एक को बड़ी बरकत दे। हाँ खुदा हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज सुन दे, जिस तरह से अपने कर्जा माफ़ करने, तू साढ़े कर्जा माफ़ कर दे, सानू अज़मैश च ना पास चुगबरी ते बचा, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल पादर फाकत हम तो लेके हमेशा तक सब बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, घर के साथ, घराने के साथ, जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक के साथ साथ खुदावंद बाप बेटी पाक के नाम ते आमीन। इबादत का वक्त ख़त्म हुआ, अब सलामती से रहें। बाप बेटी